Namaskar, welcome to White Angle to Ashok Vyas, and today I am so happy to be welcoming someone who is expert in so many fields that one begins to wonder how she manages to not just be a founder of Orator Academy, but also help many students develop their personality. And she has also been a good mother. Her kids also developed personality in a way which brought a lot of accolades for them. But she is also actively pursuing her desire to serve the community, and she is one of the few who were elected for Livingston Board of Education, and she's the only Indian American in that position. So I take this opportunity of welcoming with joy Vanita Khanna ji to this conversation. Namaste, Vanita ji. Thank you so much, Ashok ji. Thank you for your kind introduction. And as I see you in the frame, I'm reminded that you have been a host for a very popular radio show for many years. And so let us begin by Vanita in her formative years. What was it which made you happy at the time? You wanted to be a dancer, a singer, a speaker. Was there any role model as you were growing up? So, Ashok ji, जब मैं छोटी थी, well, should I speak in Hindi or English? Both are good. दोनों ही भाषाएं अच्छी हैं. So English is great because I did my radio show in English and people used to actually ठीक है. talk about that. So growing up, I think music really brought me a lot of peace and sanity, and it was always playing in the background from morning till night. Morning used to start with bhajans that my father used to play in the background. So बहुत ही सुंदर भजन सुन के मैं बड़ी हुई. फिर म्यूजिक कब मेरे पर्सनालिटी का हिस्सा बन गया पता ही नहीं चला. And I have pursued it till now, and I hope to pursue it even in my next lifetimes if I can. So that gave me peace, and of course being around family gave me a lot of peace and joy, and that still continues to be my sense of security and well-being. This sense of security की बात की तो I'm kind of tempted to also not just mention the good fortune that you have of being in the close proximity of Sangeet Martand Pandit Jasraj ji, and having learned from his great disciple Tripti ji, Pandita Tripti ji. Now, before we proceed further, when you said कि वो उसमें एक सुरक्षा का भाव संगीत आपको देता है, तो कभी कभी ऐसा होता होगा आप अकेले में गुनगुनाती होंगी, तो समझिए आंख बंद करके आप अकेली हैं, तो क्या गुनगुना सकती हैं अभी? अगर आंख बंद करती हूँ तो यही आता है कि वक्त की कैद में जिंदगी है मगर चंद घड़ियां यही हैं जो आजाद हैं. चंद घड़ियां यही हैं जो आजाद हैं. इनको खो कर मेरी जाने जा उम्र भर ना तरसते रहो. अरे वाह, आज जाने की जिद ना करो. बहुत ही अच्छा आपने गाया. ऐसा लगता है आपसे बात नहीं करनी चाहिए, आपसे सिर्फ संगीत में ही सुनना चाहिए. और आपने खूब कहा कि आप अगले जन्म में भी उसको परस्यू करना चाहेंगी, और मुझे लगता है इस जन्म में भी आपको इस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए. एंड लेट पीपल हैव द जॉय ऑफ लिसनिंग टू यू. पर आज हम संगीत में थोड़ा बहुत वापस जाएंगे, बट वी विल कम टू द अदर साइड ऑफ योर पर्सनैलिटी. एंड उसमें जब आप बचपन में भजन की सुनने के साथ साथ विकास की यात्रा की बात कर रही थी, तो व्हाट बिकेम योर ड्रीम कि वही मुझे बड़े होकर ये बनना है? एक समय में सबके मन में शायद आता है. सो अशोक जी, मैं जो न्यूज रीडर्स हुआ करते थे उनको बड़े ध्यान से सुना करती थी. जैसे आप अभी बैठे हैं टीवी के आगे. I've never been a TV person, I've always been behind the radio. But जब मैं देखती थी उनको, सलमा सुल्तान, प्रतिभा, उनका लास्ट नेम भूल रही हूँ मैं, और रिनी साइमंड, and all those news readers that I used to watch while growing up.
I used to be fascinated and very impressed by their diction. चाहे वो हिंदी में बोले, चाहे वो इंग्लिश में बोले, इतनी खूबसूरती से वो बोलते थे. तो मुझे वो बहुत impressive लगता था. So I think my interest in elocution started from there. और म्यूजिक में जो मेरा इंटरेस्ट है, आई थिंक माई पर्सनैलिटी नीड्स एंड क्रेव्स एक्सप्रेशन. वो चाहे बोल के हो या गा के हो. डांस मुझसे होता नहीं है, बट आई थिंक दैट्स हाउ मुझे उससे सुकून मिला. और एक मुझे दुनिया घूमने का बहुत शौक था. मुझे तरह तरह के लोगों से मिलने का हमेशा बहुत शौक रहा है. एंड जब मुझे लोग कहते हैं कि अरे तुम जेमिनाई हो, यू आर अ मेड बॉर्न, यू आर डुअल पर्सनालिटी, तो मैं उनको हमेशा करेक्ट करती हूँ कि मैं डुअल पर्सनालिटी नहीं हूँ, मैं मल्टीपल पर्सनालिटी हूँ. एंड I take it as a glory and as a strength, because I can sit with anybody, any gender, any age group, any ethnicity, and I can have a wonderful conversation and a fun conversation, जहाँ दोनों को महसूस ही ना हो कि डिफरेंसेस क्या हैं, बल्कि हमारी जो कॉमनैलिटीज हैं वो सामने आ जाएं. तो I was always into multiculturalism, and I think that's what I did when I moved to this country in my children's schools. A whole wave of multiculturalism, जो कि आज तक हमारे बहुत सफेद Jewish टाउन में बहुत पॉपुलर है. मैं थोड़ा सा और धीरे धीरे चल रहा हूँ. यहाँ तक आने से पहले जो बात आपने कही बहुत खूबसूरत बात है कि किसी भी आयु वर्ग का हो, किसी भी जेंडर का हो, किसी भी एथनिसिटी का हो, यू फील देयर इज़ अ सेंस ऑफ कंफर्ट विच इंस्टेंटली डेवलप्स. तो इस कंफर्ट लेवल तक आने के लिए आपकी जो इनर जर्नी होती है, एंड इफ आई मे से, आपका अपने साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छा होना चाहिए, उसमें बहुत हार्मनी होनी चाहिए, तब ऐसा हो सकता है कि यू कैन गिव स्पेस टू अदर्स, इज वन वे ऑफ पुटिंग इट. आप बताइए कि क्या सीक्रेट आपको लगता है. यू probably were gifted with something, but you must have worked on something also consciously. Talk to us about that side. So Ashok ji, I think this is what I got as the values from my parents. मैंने अपने पेरेंट्स से देना सीखा है, और चाहे वो गिफ्ट्स हों, चाहे वो प्यार हो. तो और मैंने उनसे ये भी सीखा है कि भगवान मुझे हमेशा देने की कैपेसिटी में रखे. तो चाहे वो मटेरियल गिफ्ट्स हो, या फिर वो प्यार मोहब्बत हो, या किसी को सुकून हो, किसी को एक कंधा देना हो सहारे के लिए. तो आई थिंक दैट हैज़ रियली केप्ट मी इन अ वेरी गुड प्लेस. जब मैं किसी से मिलती हूँ या किसी के साथ कुछ काम करती हूँ या किसी जगह को ज्वाइन करती हूँ, तो मुझे ये लगता है कि मैं इनके लिए क्या कर सकती हूँ, क्योंकि उसमें मेरा अपने आप ही फायदा हो जाएगा. अगर मैं किसी के साथ बैठती हूँ और हमारी अच्छी खासी बातचीत शुरू हो जाती है, हमारी दोस्ती हो जाती है, इट्स अ विन विन. अगर मैं किसी प्रोडक्ट के लिए काम कर रही हूँ या कुछ भी मेरा प्रोजेक्ट है, अगर वो प्रोजेक्ट, वो इवेंट सक्सेसफुल होता है, तो ग्लोरी ऑटोमेटिकली कम्स टू मी. सो आई डोंट think of now, I live for now, but I don't evaluate each action of mine, and I don't overanalyze. I don't try to overthink, because that I find very crippling. तो जो अभी है उसी को अच्छे से निभा लो, और आगे जो होगा, that is a divine plan, I will gracefully accept it. तो अब क्योंकि आप मेरी ये निवेदन स्वीकार करें, मुझे 2 गाने याद आ गए आपकी बात सुनते हुए. एक तो यह है कि आगे भी जाने न तू, पीछे भी जाने न तू. सुना होगा आपने ये गाना. मैं अभी, मेरे जहन में वही था जब मैं आपसे कह रही थी जो मैं कह रही थी. तो आप थोड़ा गुनगुनाइए ना ये गाना प्लीज. ये पल उजाला है, बाकी अंधेरा है, ये पल गवाना ना, ये पल ही तेरा है, जीने वाले सोच ले, यही वक्त है, कर ले पूरी आरज़ू, आगे भी जाने ना तू, पीछे भी जाने ना तू, जो भी है बस एक पल है. बहुत ही अच्छा गाती हैं आप वनीता जी. सो नाइस, ब्यूटीफुल.
सिर्फ दिल ही है, दिल से गाती हूँ और कुछ नहीं। दिल के साथ साथ कुछ और बातें भी होती हैं। दिल से गाने वाले कई होते हैं जिनको दूसरे सुनना पसंद नहीं करते हैं। ऐसे भी लोग होते हैं, उनको तो लगता है मैं दिल से गा रहा हूँ। बहरहाल, तो बात को आगे ले जाने से पहले कि आप अमेरिका आई, यहाँ की लाइफ की शुरुआत, एक रेफरेंस आया था ग्लोबल सिटीजन वाला। जी। आपको घूमने का बहुत शौक है और मुझे लगता है आपने बहुत सारे देशों की यात्रा भी की है। अगर 2-3 मिनट में आप बताएं कि क्या, कौन सी जगह आपकी फेवरेट है अदर देन अमेरिका एंड इंडिया, एंड एनीथिंग, वन इंस्टेंस विच सॉर्ट ऑफ सम्स अप द प्रेसिपिटेट ऑफ योर एक्सपीरियंस। Ashok ji, I have been lucky enough to travel a lot. I joined an airline because, coming from a middle class family, I knew कि ना मेरे पास इतने पैसे थे और ना मेरे पेरेंट्स सपोर्ट कर पाते कि मुझे जगह जगह घुमा पाते इंटरनेशनली। सो हमने क्या इजी रास्ता चुना, एयरलाइन ज्वाइन कर लिया और खूब अनलिमिटेड ट्रैवल करा, कहाँ कहाँ नहीं गए, एक कोने से दूसरे कोने। आप एयर होस्टेस थी? जी जी, मैं एयर होस्टेस भी रह चुकी हूँ। इट सीम्स ओहो, लाइक अ लाइफ टाइम नाउ, बट it was, and each experience that I have gone through in my life has built me up to be what I am today, and I'm extremely grateful for it. So जो मैंने 5-6 साल फ्लाई किया उसमें मैंने बहुत एक्सपीरियंसेस, जगह जगह घूमे, अमेरिका भी गए, फार ईस्ट भी गए, यूरोप भी बहुत ट्रैवल किया। अब आप पूछते हैं कि मेरी कौन सी खास जगह रही होगी, बट इट्स वेरी हार्ड टू आंसर दैट क्वेश्चन बिकॉज हर एक जगह का अपना कैरेक्टर है। When I think of history, I think of Italy. Rome was unbelievable, breathtaking. When I think of romance, I think of France. When I think of spirituality, nothing comes close to India. absolutely. So there are, each place has a different character. It depends what I'm seeking from that moment. So it's hard to answer this question about my favorite place, so to say. तो इतने ब्रिलियंट मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी से बात करते हुए अगर बंदा ऐसा क्वेश्चन पूछे जो वो कहें कि वो ये डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पूछ लिया, देन इट इज़ कॉम्प्लीमेंट फॉर मी। ऐसा ऐसा लाइटर वेन में कहते हुए विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक एंड विल कंटिन्यू अवर कॉन्वर्सेशन एंड वी कम बैक, विल टॉक अबाउट the Orator Academy as well as representing the community in Livingston Board of Education. So all that coming up right after these short messages. Welcome back. You're watching Wide Angle with Ashok Vyas and my guest today is Vanita Khanna ji. Vanita ji, before the break we were talking about various aspects which gave us the joy of connecting with the singer in Vanita ji. And now let us look at the oratory as a skill which you not just enjoy practicing yourself, but you have also been generous in sharing that. तो बताइए एक ऑरेटर को अच्छा ऑरेटर क्या बनाता है? एक ऑरेटर को अच्छा ऑरेटर उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाता है सबसे पहले, और दूसरा ये कि इफ यू स्टे ऑनेस्ट टू व्हाट यू आर सर्विंग एंड हु यू आर सर्विंग। आप किस चीज पे बोल रहे हैं और किसके सामने बोल रहे हैं, अगर आप उनका सोच के चलें, एवरीथिंग फॉल्स इनटू प्लेस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू हैव द करेज एंड दैट कॉन्फिडेंस दैट यू आर good enough and qualified enough to be in that position, to be in that moment. And secondly, just focus on the audience and everything falls into place. When you think about connecting with the audience, that connection that you'll establish is the most important, because आप जो मर्जी बोल लें, जितना अच्छा बोल लें, जितना मर्जी अच्छा बोल लें, लेकिन audience आपसे क्या लेके जाएंगे, that will decide how good an orator you are. प्रिपरेशन और स्पॉन्टेनिटी, इन दोनों में आप किसको ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझती हैं? Both go hand in hand, Ashok ji, because preparation is important because you don't want to wing it all the time. That's not fair, that's not right, and that means you're cutting corners somewhere. But off the cuff, उसका मजा ही कुछ और है। तो उस उतनी भी हिम्मत अगर हम रखें कि कभी ऑन द स्पॉट आपको बोलने को कह दिया जाए तो आप झिझके ना, कम बोले लेकिन बोले जरूर, उसका मजा ही कुछ और, उसकी थ्रिल ही कुछ और। इट्स लाइक अ एक्सट्रीम थ्रिल राइड इन एन अम्यूजमेंट पार्क। You'll come back with a high. So have some faith in yourself and take that moment, take that chance. Absolutely. तो एक और बात जो इससे जुड़ी हुई रह जाती है, जब आप वन ऑन वन कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं तब भी आप बोल रहे हैं, एंड व्हेन यू आर टॉकिंग टू लॉट ऑफ पीपल मे बी ऑन स्टेज तब भी आप बोल रहे होते हैं, तो दोनों में
बेसिक क्या है जो आपको लगता है डिफरेंशिएट करता है, जो कि एज अ कोच टीचिंग अदर्स ओरेटरी स्किल, क्या इस पर भी अलग से ध्यान देने की बात आती है? जी, होता क्या है कि जब ऑडियंस छोटा हो, when there's limited people, it's actually more work for the speaker, because then you have to make and establish that connection with the audience. आपको उनकी आंखों में देखना पड़ेगा, और अगर ज्यादा लोग हैं तो आप सिर्फ डायरेक्शंस में देख रहे हैं, आप उनकी किसी इंडिविजुअल की आंखों में नहीं देख रहे हैं. So again, different strokes for different folks. I always believe in that. There's no one rule that defines and works for all in this particular skill. It's a personality based skill. There are a lot of people who are actually more comfortable in a smaller setting, and there are a lot of people who are comfortable in a setting with the larger people. जैसे कि मैंने कहा कि शायद मेरे ख्याल से छोटे रूम में with a smaller audience would be more challenging than a larger room with a bigger audience. There are some people who completely believe in a flip situation, which is absolutely, completely right. It depends on the comfort level. There are some people who are more comfortable speaking in front of people they know, and there are some people who are comfortable speaking in front of people they don't know. ये भी अपना अपना comfort level है. कुछ लोग कहते हैं कि I don't want to speak in front of people I know because वो मुझे जानते हैं, वो मुझे फिर मिलेंगे, और अगर मैंने अच्छा नहीं बोला तो मुझे उनकी शक्ल देख के हमेशा याद आएगा कि they knew how bad I was. अच्छा, सॉरी इंटरप्ट किया मैंने, लेकिन आपका क्या केस रहता है? यू प्रेफर बोथ ऑडियंस, या ऐसा होता है किसी में ज़्यादा मज़ा आता है? प्लस इफ आई में ऐड कि कोई पर्टिकुलर थीम है जिस पर आपको बात करना ज़्यादा अच्छा लगता है? So आपका the first part of your question, अगर मुझे गाना है तो मुझे छोटे ऑडियंस साइज चाहिए और अगर मुझे बोलना है तो बड़ा चलेगा. Because I feel music gets lost in the number of the crowd. I don't enjoy live shows, even listening to a live performance as much, because मुझे लगता है कि वहाँ पे सब quality is compromised, as opposed to वो जो एक intimate gathering हो जिसमें कि आप करीब हैं एक दूसरे को, सुन रहे हैं, कोई गा रहा है आप सुन रहे हैं, आप गा रहे हैं कोई और सुन रहा है. So, but in terms of speaking, larger audience is great. And what was the second part of your question? Please remind me. सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन को छोड़ देते हैं क्योंकि वो आपके पास रहा नहीं है, लेकिन उसके 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 साथ एक ऐड कर लेते हैं. कई बार ऐसा होता है कि किसी के अंदर कुछ टैलेंट होता है और अ पीरियड ऑफ ईयर्स वो फिजल आउट हो जाता है. वो कहते हैं हम छोटे थे जब ऐसा था, या यू कम अक्रॉस मैनी मैन विमेन हु से कि जब मैं कॉलेज में थी या था तो मैं ये करता था, ये मुझे लोग तारीफ़ करते थे, मे बी सिंगिंग, पेंटिंग, वॉट एवर इट इज़. तो कुछ चीज़ है कि आप अपने स्किल कह दें, आर्ट कह दें, पैशन कह दें, उसको सस्टेन करने के लिए भी कुछ करना होता होगा. एसम्पशन लेते हुए ऐसा लगता है कि यू हैव बीन वेरी कॉन्शियस इन सस्टेनिंग और सेफ गार्डिंग वो जो एक फ्लो ऑफ ब्यूटी विद इन है उसको बचाए रखने के लिए. टॉक टू अस अबाउट दिस साइड. So I think the talent that stuck out in me, or the desire or the passion that I recognized in me, was with music. So मैंने बचपन से in the sense in my pre-teens I took to music. I guess थोड़ी जब समझ में आना शुरू करा और जब थोड़ी और बड़ी हुई तो पेरेंट्स को बोला कि मुझे classical music सीखना है. तो that was a conscious decision on my part, because my parents, none of them were classically trained. They both sang though. So they were quite confused कि ये क्यों जाना चाहती है स्कूल के बाद. She is willing to go to another class. उस वक्त इतनी क्लासेस नहीं हुआ करती थी बच्चों की आफ्टर स्कूल जितनी आजकल होती हैं. So they were quite confused कि ये फिर जाना चाहती है घर आके for a music class. ये क्या करेगी क्लासिकल सीख के. So I think that was a conscious decision on my part. I did not pursue classical singing, though I still go back and forth with my classes, with my lessons, because my desire to learn classical was only to keep my vocals strong and flexible. I never envisioned myself as a classical singer. पर मुझे लगा था कि वो important है मेरी classical roots, मेरी singing roots को establish करने के लिए, ताकि मेरा talent जो है वो ऐसे ही खराब ना हो जाए, कुछ बने, कुछ shape हो उसका, इसलिए. So that was a conscious decision. And of course, in terms of public speaking, I never saw myself as a speaker when I was growing up,
but I did see myself as a performer. So there's barely any difference because you go through the same butterflies in your belly, the same anxiety, the same preparation. It's just that the project is different, the task is different. So that is another thing that I think very conscientiously pursued in school, college, and in all the wherever I worked so far. तो अनीता जी, कुछ पर्सनैलिटीज़ ऐसी होती हैं जिनमें आपको लगता है कि ही और शी इज़ एक्सेलेंट इन दिस, excellent in this, excellent in that also, and then one wonders कि ये इतने अच्छे कैसे हैं हर एक चीज़. So with you, I feel you are a very good singer, and I don't have the knowledge of going through that classical prism जिसमें हम मार्किंग करते हैं कि ये आरो अवरो इत्यादि. But now coming back, so for you also must be having a little bit of that clarity of feeling in your mind कि मैं इसमें भी अच्छी हूँ, इसमें भी अच्छी हूँ, and then you zeroed down on establishing Orator Academy. तो क्योंकि समय कम है इसलिए मैं 2 सवाल एक साथ जोड़ रहा हूँ और मैं याद रखूँगा, आपको याद दिला दूँगा. पहले तो आपने ये कब सोचा कि मुझे ये सिखाना चाहिए? सेकंड, क्या एक्सपीरियंस आपका रहा है, हाउ यू बिगिन टीचिंग ओरेटरी? बिकॉज ऐसा लगता है कि बोलना तो सबको अपने आप आता ही है, फिर लोगों का ईगो भी रहता है, सीखने आते हैं तभी उनको अरे मैं तो जानती हूँ या जानता हूँ. सो बोथ साइड्स. So I'll start backwards so that I don't forget the last part of your question. तो आपने सही कहा कि लोग आते हैं, कुछ कभी कभी ईगो होती है, लेकिन आए वो ही हैं so far मेरे पास जो कि अपनी ईगो छोड़ के आए हैं. दो highly accomplished people. I work predominantly with children, but I have worked a lot with people on the Wall Street, people in the IT industry, private vendors, nurses. One of my students is a head nurse in a hospital in the Bronx, and I was also working last year with Miss New York 2020. So जब वो मेरे पास आई, बहुत ही खूबसूरत, बड़ी eloquent लड़की, तो मैंने उनसे बोला, मैंने कहा आप तो आई, वो मेरे से virtually आई मेरे पास, not physically. तो मैंने उनसे बोला कि आप इतना खूबसूरत बोलती हैं, उनका नाम आंद्रिया है, आंद्रिया जिबाओ. सर आप इतना खूबसूरत बोलती हैं, आपको मैं क्या सिखा सकती हूँ, आप इतनी दूर आगे तक आई हैं, आप ऑलरेडी मिस न्यूयॉर्क बन चुकी हैं. सो शी वाज प्रिपेयरिंग फॉर मिस यूएसए. तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं जानती हूँ कि मैं अच्छा बोलती हूँ, मैं काफ़ी इंटरव्यूज़ दे चुकी हूँ, ऑल ओवर यूट्यूब मेरी इंटरव्यूज़ वगैरह हैं, बट मैं ये भी जानती हूँ कि जब मिस यूएसए होगा और मिस यूनिवर्स होगा, उसके बाद अगर मैं मिस यूएसए बन गई तो जो आखिरी की 3 लड़कियां रह जाती हैं उसमें जो सबसे अच्छा जवाब देती है, that's the girl who wins the crown. Wow. I want to make sure that I cover all bases, and even though the pageant provides us with a coach, I want to do everything I can on my part. So I was very impressed with her. Unfortunately, she did not make Miss USA. She didn't come to that round where she would be answering the question. And I worked with her very briefly also because of the pandemic. But वो काफ़ी लोग, एक स्टूडेंट के फादर आते हैं मेरे पास, आजकल भी आ रहे हैं, वो बहुत ही सुपर अचीवर हैं, already a super achiever, already very confident man, but he wants to be better in terms of his public appearances. So I'm happy to work with him. When I correct him, he listens to me. So आपने पूछा कि मैंने कैसे डिसाइड करा कि मैं इस ऑडिटर अकेडमी एस्टैब्लिश करूँ. वो हुआ ऐसे कि 16 साल रेडियो भी किया और मेरे बच्चे संडे स्कूल जाते थे वहाँ पे एज अ पेरेंट वॉलंटियर. I used to work a lot, offer my services, whatever talents I could, help them with their annual show, MC their annual show. So वहाँ पे मुझे एक बड़े अच्छे दोस्त बन गए मेरे. उन्होंने मुझे बोला कि तुम इतना अच्छा MC करती हो, तुम रेडियो 10 साल से ऊपर कर चुकी हो, उस वक्त 10 साल ही हुए थे, और तो तुम बच्चों को क्यों नहीं सिखाती हो? Because nobody is helping the children. हमको बड़ी उम्र में याद आता है कि यार ये चीज़ तो हम करना ही भूल गए. So हमने कहा यार तुमने हमारा प्रोफाइल देखा, हमारा कोच का प्रोफाइल लगता है तुमको कहीं से? कहते तुम करके तो देखो. So वही उन्होंने बोला, हमने कहा ठीक है, we'll give it a shot, and the session instantly was sold out. And I had such a blast doing it, and the children seemed to benefit a lot. तो हमने वो तब Auditors Are Us के नाम से प्रोग्राम शुरू किया था, and much later then I established a formal academy called Auditor Academy because I didn't want it to be just for the children. So I predominantly work with the children. My youngest student is 6.5 years old, and the oldest is 62. Wow. You really said it कि हर एज के
लोगों के साथ आप कंफर्टेबली कनेक्ट हो जाती हैं. सो टाइम लिमिटेशन देखते हुए मैं एक तो ब्रीफ में आपसे जानना चाहता हूँ, ये इलेक्शन में खड़े होना, फिर ये बोर्ड ऑफ एजुकेशन में रिप्रेजेंट करना, वो आपको क्यों इम्पोर्टेंट लगा? एंड ऑफ कोर्स दिस इज इनक्रेडिबल दैट यू मैनेज टू रीच वेयर यू डिड, एंड हाउ हैज़ बीन दिस जर्नी, दिस एक्सपीरियंस? It has been numbing and humbling at the same time because I have lived in this town for over 21 years. And you are in Livingston. I am in Livingston, New Jersey. I have lived in this town 21 years. Both my kids have gone kindergarten through 12th in this township. And शुरू से मैं स्कूल में काफ़ी इन्वॉल्व रहती थी बिकॉज मुझे था कि आई डिडंट गो टू स्कूल्स हियर, सो आई नीड टू एजुकेट माई सेल्फ कि यहाँ कैसे किया जाता है. तो उस वक्त वो एक मल्टी कल्चरल इवेंट शुरू करना चाहते थे स्कूल वाले, तो उसमें हमने साइन अप कर दिया और किसी ने साइन अप ही नहीं किया. हम अकेले थे साइन अप करके बैठे थे. तो उन्होंने पूछा हमसे आप कुछ कर सकती हैं इसके बारे में. हमने कहा ठीक है. हमने एक इवेंट एनविजन किया और आज वो इवेंट इतना फ्लरिश कर चुका है कि हमारे सब स्कूल्स में यहाँ वो सेलिब्रेट किया जाता है, मल्टी कल्चरल इवेंट. तो वो हुआ. उसके बाद से हम जब बच्चे बड़े हुए थे, व्हाट डिडंट वांट मी अराउंड सो मच, तो हमने टाउनशिप की सर्विसेज ज्वाइन कर ली. इन द सेंस आई स्टार्टेड वर्किंग एज अ जोनिंग बोर्ड मेंबर, द ओपन स्पेस कमिटी मेंबर एंड मेंबर एट द डाइवर्सिटी कमिटी. तो वो हम कर रहे थे. उसके बाद my children have finished school, so I don't stand to benefit by my services for the Board of Ed. But the community actually reached out to me, the Asian community, South Asian community, when the seat became available, and they said, Vinita, you'd be a great representative, and please consider. I didn't want to because I thought I was very busy already. But looking at that confidence that so many of these people showed in me, I felt I owed it to them. And I said, अगर आपको इतना यकीन है कि मैं ये सीट जीत सकती हूँ तो ठीक है, then I'll give it my best, but only because of you, not because of my own aspirations. And ये मामला शुरू हुआ, and there were 4 candidates, 1 seat. I did not expect to win at all, but it was such a phenomenal victory, and I'm so grateful. And the Indian community is so elated because I am the first person of Indian origin to be elected to any public office in our town. So I am glad that it happened, and I'm glad that the community had that confidence in me, and I'm glad that it worked out as they envisioned it. And I hope more and more people will come forward and take upon this responsibility and the risk and lead the community. Wonderful. I want to clap, and you said I'm glad with 2-3 references, and I'm glad that we are talking to you, and I'm glad that when you have such openness and generosity in your heart, life becomes like in Hindi we say उत्सव. तो उत्सव या सेलिब्रेशन के साथ में वनिता जी, as we conclude our conversation, बहुत ब्रीफली अगर कोई ऐसा गाना हो जो आपको लगता है कि सेलिब्रेशन के साथ जुड़ा हुआ है एंड दैट इज योर फेवरेट, तो वो आप हमारे दर्शकों तक पहुंचाएं प्लीज. चार चराग तेरे पलन हमेशा, पंजवा में बालन आई भला झूल लालन, सिंदड़ी दास अमर दास की शाबाश कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, अलीदा पहला नंबर, हो लाल मेरी, हो लाल मेरी. Very, very good. Vanita Khanna ji join us from New Jersey, Livingston Board of Education में रिप्रेजेंट करने के अलावा ऑरेटर एकेडमी आपने इस्टेब्लिश की है, और गायकी से जो आपका प्रेम है उसको लेकर हम फिर कभी आपके साथ जुड़ेंगे और भी कई बातें आपसे सीखी जा रही हैं और सीखी जाएं, ऐसी आशा. और हमारा साथ देने के लिए इस बातचीत में वनिता जी बहुत बहुत आपका धन्यवाद है. बहुत सारी शुभकामनाएं. Ashok ji, I'm extremely grateful. Thank you for having me. It's been an amazing journey, and it's been humbling talking to you as well. Thank you. तो वनिता खन्ना जी के साथ बातचीत में आपका साथ रहा, उससे और अधिक आनंद हुआ. बहुत मंगल कामनाएं. अशोक व्यास को अनुमति दें. नमस्ते.